welcome back to day 9 of our AWS series. Since many days I haven't uploaded any video. This is due to my health issue. So मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए we are not able to connect. So till now we have explained the Linux architecture and various cloud computing uh, basic. Okay, so today is the most important part. Like today we are going to see the how actually we can use the Linux commands. Okay, and today we are going to perform the actual practical on Linux. Okay, so these are some commands that we are going to see, and I will upload this link of this document at the end of my video, so you can access it. And so I was not able to upload my link in uh, description box, so you can access it by the Google Lens. Okay, so let's see. So before moving forward, I want to tell you that the Linux is the heart of servers, the soul of cloud computing, and sometimes the reason we cry at 2 a.m. when we accidentally delete a folder. So don't worry, I will make sure you don't end up crying after this session. So in Linux, in AWS, like most EC2 instance run on Linux. Okay, so if you don't know Linux command, it's like being a kitchen but not knowing how to use a knife. So today we will cover the most important commands you will use daily in AWS. So for that, first of all we have to install the EC2. एक्चुअल में हमें लिनक्स सीखने से पहले हमें EC2 इंस्टेंस को वाया गिट बैश आर एल्स वेब ब्राउज़र से कनेक्ट करके ही हमें लिनक्स के कमांड्स हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर दैट वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट वन EC2 इंस्टेंस. सो गो टू योर AWS account. In that you can search the EC2 service, like, or else you can see here is the recently view. I have recently viewed the service, so I get here. But if you not, then you have to search in the search bar, like here. Here you can search the EC2, then you will get. And the main important thing, always remember that always start new service in a new tab. So let's go to this tab. So you can here see one option like launch instance. So click on that for launching the instance. So you will see this dashboard. So first of all, give a name to your EC2 instance. That what name you have to give. So I will give like my first EC2. So then wait. Here you can choose the OS, like which OS you have to launch this instance, like Amazon, Mac, Ubuntu, Windows. So first I will prefer Amazon. Okay, so let's click on Amazon. यहाँ पे सब बाय डिफ़ॉल्ट रखना है. और यहाँ पे नीचे आपको एक कीपेयर वाला सेक्शन दिखेगा. अगर आपके यहाँ पे कीपेयर नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑलवेज चूज Mumbai region. Here I have by default I am in the North Virginia region, but never use the North Virginia region. Just click on that and choose Mumbai region, and always launch any instance in Mumbai region because it is closer to us. So I always prefer this. So my first EC2, आप कौन सा भी नाम ले सकते हैं. यहाँ पे मेरा सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ. अगर आपका नहीं, आपके पास नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू सिक्योरिटी पेयर आएगा. यहाँ पे सिर्फ आपको लाइक की लाइक डेमो हाइफन की ऐसा कुछ तो नेम देना है. और मतलब यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसीलिए नहीं है इस नाम से. आप कोई भी जिस नाम से एग्जिस्ट नहीं है उस नाम से क्रिएट कर सकते हैं. ओके, देन गो टू द नेटवर्क सेकेंड. यहाँ पे ये दोनों भी टिक करना है, HTTP आणि HTTP और HTTPS. देन इट ऑल्सो वी हैव टू add one security group rule like all traffic.
हमेशा ऑल ट्रैफिक हमें ऐड करना है फॉर द इंटरनेट एक्सेस। बस हमने क्या क्या किया है, हमने सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट हमने सिर्फ EC2 को नाम दिया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे OS चूज़ किया है। उसके बाद सिर्फ जो की पेयर है उसे सेलेक्ट किया है, और अगर नहीं है क्रिएट किया है, देन उसके बाद हमने SSH, HTTPS, HTTP और ऑल ट्रैफिक ये रूल असाइन किए हैं, और सिंपली हमें यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करना है। और यहाँ पे जाके हमें देखना है हमारा इंस्टेंस सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। लाइक EC2 की एक डिफरेंट सर्विस है, हम उस सर्विस को होल देखने वाले हैं, बट सिर्फ हमें लिनक्स यूज़ करने के लिए इंस्टेंस लगेगा, इसलिए हम एक इंस्टेंस इंस्टॉल करके हम लॉन्च करके हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, यहाँ में इसे ब्रीफली और भी एक्सप्लेन करना है मुझे। ओके, सो ये इंस्टेंस रनिंग स्टेज में है, अगर रनिंग स्टेज में ही है तभी हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन दैट, हियर इज द कनेक्ट ऑप्शन, देन आई हैव टू कनेक्ट इट यूजिंग गिट बैश। और आप डायरेक्ट यहाँ EC2 कनेक्ट करके वेब ब्राउज़र पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट आई विल प्रेफर दी गिट बैश। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल वाला लिंक है वो कॉपी करना है, देन गो टू द गिट बैश। अगर गिट बैश में हम मास्टर में नहीं है, वेट, अगर हम यहाँ मास्टर में नहीं है तो हमें सिंपली ऐसे CD करके हमें मास्टर में जाना है। और मैं यहाँ पे पहले से ही मास्टर में हूँ, अब मुझे CD और डाउनलोड्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी फाइल है वो डाउनलोड्स में जो की पेयर थी। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल वाला कॉपी किया था उसे जस्ट पेस्ट करो। यहाँ पे हमें कनेक्शन के लिए वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट, लाइक हम कनेक्ट करना चाहते हैं या नहीं। यस, ऑफ कोर्स हमें प्रैक्टिस करनी है तो ऑब्वियसली हम कनेक्ट करना चाहेंगे। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, हमने सक्सेसफुली कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है। ओके, तो देखते हैं क्या हमारे लिनक्स की कमांड है। ओके, सो फर्स्ट जो कमांड है हमें देखना है कि हमको कौन से यूज़र है, हु एम आई। तो हम EC2 यूज़र है ये बता रहा है हमें। हु एम आई कमांड शोज हु इज द यूज़र। ओके, देन सेकंड वन इज द PWD। तो PWD कमांड क्या करते हैं, हम कौन सी डायरेक्टरी में, हम अभी होम और EC2 यूज़र इस डायरेक्टरी में है। ओके, तो दूसरा होता है sudo su हाइफन, हमें रूट में जाने के लिए हम sudo su हाइफन यूज़ करते हैं। ओके, तो अब मैं ls करना चाहूँगी। ls इज़ फॉर लिस्टिंग द फाइल्स, ls-l फॉर लॉन्ग लिस्टिंग। जो ls कमांड है जो हमें इट इज़ यूज फॉर लिस्टिंग द फाइल्स, बट यहाँ पे कैसा मतलब सिस्टमेटिक नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम ls-l लॉन्ग लिस्टिंग फाइल्स के लिए यूज़ करते। तो यहाँ पे कैसे दिखता है, उसके परमिशंस क्या है, फिर रूट में कहाँ मतलब उसकी कितने सर्वर्स है, यहाँ पे उसके कितने सर्वर्स यूज़ कर रहा है, उसकी डेट, सब कुछ, और फाइल का नेम। ls-l करने के बाद सब कुछ हमें यहाँ पे डिटेल में दिखने को मिलेगा। और अगर मुझे हिडन फाइल्स भी देखने हैं तो ls-la करने के बाद में हिडन फाइल भी देख सकती हूँ, इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स। तो हिडन फाइल्स क्या होंगे, यहाँ पे यहाँ पे जो डॉट से जो फाइल सेव है ये हिडन फाइल्स। इफ आई वांट टू सी द हिडन फाइल्स एज वेल, देन आई विल यूज द ls-la कमांड। ओके, सो नेक्स्ट कमांड इज इफ आई वांट टू क्रिएट वन डायरेक्टरी, मुझे एक फोल्डर बनाना है, देन फॉर मेकिंग द फोल्डर द कमांड इज mkdir एंड आई विल मेक दी मैं फ्यूजन नाम से एक फोल्डर बनाना चाहूँगी, देन mkdir, देन गिव द नेम ऑफ फोल्डर। सो मेरा फोल्डर बन चुका है, तो मैं फोल्डर में आना चाहूँगी।
So for coming to the folder, use cd command, cd fusion. तो इस फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करना चाहूँगी. लाइक क्यों क्रिएट करना है, आपको सिखाने के लिए क्रिएट करना है. अगर मुझे एम्प्टी फाइल क्रिएट करना है तो मैं टच कमांड यूज़ करूँगी एंड देन द नेम ऑफ फाइल. तो मैं फाइल साक्षी नाम से क्रिएट करूँगी, टच साक्षी. अब मैंने फाइल तो क्रिएट की है, एम्प्टी क्रिएट की कि तब मेरा मन नहीं था कि उस फाइल में मैं कुछ भी लिखूँ या एंड ऑल. बट अब मेरा मूड स्विंग हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कुछ तो लिखना चाहूँगी इस फाइल में. क्या लिखूँगी पता नहीं, बट मुझे कुछ तो लिखना है. देन यूज़ vi कमांड, vi द नेम ऑफ दैट फाइल. तो आपको एक ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, लाइक एक काला अंधेरे के जैसा एक पेज है जहाँ नथिंग इज रिटन इन हेयर. तो यहाँ पे मुझे कुछ तो लिखना है. फॉर दैट जस्ट प्रेस आई. ओके, आई फॉर इंसर्ट. इंसर्ट प्रेस करने के बाद ही हम कुछ भी लिखेंगे. हेलो, आई एम फ्रॉम साक्षीज फाइल. ओके, बस इतना ही लिखना चाहूँगी. मुझे फाइल सेव करनी है तो क्या करेंगे, एस्केप, जो हमारे कीबोर्ड पे जो एस्केप वाला बटन है उसे एस्केप को प्रेस करो. देन शिफ्ट सेमीकोलन, देन WQ एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क और एंटर. कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ एस्केप को क्लिक किया है, देन शिफ्ट दबा के सेमीकोलन को प्रेस किया है, देन WQ एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क. उसके बाद मुझे देखना है कि मैंने जो भी फाइल मैंने राइट की है उसे मैं कैसे रीड कर पाऊँगी. तो उसके लिए कमांड है कैट और फाइल का नाम कैट साक्षी. तो यहाँ पे जो भी मैंने वॉट एवर आई हैव रिटन हियर आई कैन सी, यू कैन सी गाइज, हेलो आई एम फ्रॉम साक्षीज फाइल. ओके, अगर मेरा ऐसा मन है कि मुझे जो मैंने फाइल लिखी है मुझे वो डिलीट करना है, तो मैं क्या डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड है, RM देन फाइल नेम साक्षी, रिमूव रेगुलर फाइल साक्षी एस. ओके, तो मेरी फाइल रिमूव हुई है. एक बार LS करके देखते हैं. तो यहाँ पे कोई फाइल नहीं है तो मेरी फाइल रिमूव. ओके, फिर से मैं एक नई फाइल बनाना चाहूँगी फ्यूजन में. कौन सी फाइल बनाऊँ, अब मैं vi नहीं करूँगी डायरेक्ट, लाइक टच एम्प्टी फाइल नहीं बनाऊँगी डायरेक्ट. उसमें मुझे एडिट करना है vi AWS. तो यहाँ पे इंसर्ट के लिए आई, हेलो, वेलकम टू AWS file. Then for saving it, escape, shift, semicolon, WQ and exclamatory mark, enter. फाइल से कैट करके देखते हैं, कैट AWS. ओके, तो ये हुआ है अभी. हमें फाइल बनाने के लिए एक इको कमांड भी होती है फॉर वन लाइन फाइल के लिए. इंस्टेड ऑफ vi जो है वहाँ पे हम मैनी लाइन्स राइट कर सकते हैं उस फाइल में. बट बाय यूजिंग इको कमांड्स वी कैन राइट ओनली वन लाइन कमांड्स. सो इको यहाँ पे वन लाइन टेक्स्ट ही राइट कर सकते हैं. हेलो यूजर्स और हेलो व्यूअर्स. और उसके बाद स्पेस देके ग्रेटर देन साइन और उस फाइल का लाइक new.txt. अब कैट करो new.txt को. ओके, दिखा. तो यहाँ पे टच कमांड यूज करके हम एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं. उस एम्प्टी फाइल में अगर हमें कुछ भी एडिट करना है तो vi कमांड यूज कर सकते हैं. अगर हमने वॉट एवर वी हैव एडिटेड इन द फाइल एंड वी वांट टू सी दैट कंटेंट इन दैट फाइल, देन वी कैन यूज द कैट कमांड. एंड इफ वी वांट टू राइट ओनली वन लाइन
sentence, then we can use the echo command as well. So let's see the permissions, like how we can change the permissions of file. So first of all, check the what permissions is there for my Sakshi file, like ls ls hyphen l. ओके, तो जो AWS है उसके लिए क्या परमिशन है, रीड राइट, एक मिनट, जो AWS फाइल है उसके लिए क्या परमिशन है, रीड राइट जो है वो है ग्रुप, जो ओनर है उसके लिए रीड राइट है, और जो ग्रुप है उसके लिए सिर्फ रीड है, और जो अदर्स है उसके लिए आर है. लाइक ये जो पहला सेक्शन होता है ओनर के लिए होता है, दूसरा होता है ग्रुप, और तीसरा होता है अदर्स. ओके, तो मुझे ये परमिशंस चेंज करनी है. परमिशंस में मतलब क्या होता है, लाइक परमिशंस का एक रूल होता है 4, 2, 1. ओके, 4 is for read, sorry, like 4, 2, 1 ऐसा रूल होता है. 4 is for write, 2 is for read and 1 is for execute. ओके, अगर मैंने किसी फाइल को 7 ऐसी परमिशन दी, लाइक 4, 2 + 2 6 और 6 + 1 7, तो 7 होगा 7 7 7, यानी जो ओनर होता है वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है. लाइक तीनों के लिए भी फुल परमिशन हो जाएगी, रीड, राइट और एग्जीक्यूट. अगर मैंने सिर्फ 4 और 2 लाइक 6 0 0 ऐसी परमिशन दी, जो ओनर है वो सिर्फ रीड और राइट कर सकता है, और बाकी जो है वो नथिंग, दे विल नॉट डू एनीथिंग. ओके, तो दीज आर दी criteria for permission. So here I want to change the permission of AWS file. So let's see how we can change it. So for changing the permission, there is a command chmod, then give the permission, what permission you have to give. Then I want to give 600, like जो ओनर है उसके लिए सिर्फ रीड और राइट, और बाकी के लिए कुछ भी नहीं देना चाहूँगी, और AWS. तो अब देखते हैं ls करके कि परमिशन सच में चेंज हुई है क्या. ये देखो, परमिशंस आर चेंज्ड. यहाँ पे आप देख सकते हो जो ओनर है उसके लिए सिर्फ रीड राइट, और बाकी के लिए कुछ नहीं, लाइक 0 0 0. सो दिस इज द कमांड टू चेंजिंग द परमिशन. वी ऑल्सो हैव अ टॉप कमांड टू सी द करंट, मतलब करंट क्या चल रहा है हमारे फाइल्स में. वहाँ पे हमें करंट लोकेशन वगैरह सब दिखाता है. ओके, जो करंट जो वर्क चल रहा है, लाइक टाइम, कमांड, सब कुछ टॉप कमांड के से शो होता है. Ctrl+C दबाने से हम बाहर आते हैं उससे. अब हम पैकेज इंस्टॉलेशन की कमांड देखेंगे. इफ़ आई वांट टू इंस्टॉल सम पैकेज, अब मैंने अमेज़ॉन का OS यूज़ किया है, तो मुझे ना अमेज़ॉन में एक पैकेज इंस्टॉल करना है nginx नाम का. तो वहाँ पे अमेज़ॉन में कौन सी कमांड होती है, m install nginx. एक मिनट, तो अमेज़ॉन में मुझे nginx को इंस्टॉल करना है. तो फॉर दैट वी हैव अ पैकेज इंस्टॉलेशन कमांड फॉर अमेज़ॉन, लाइक m install nginx. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, और मुझे वेरिफिकेशन के लिए yes और no के लिए पूछ रहा है. देन मुझे इंस्टॉल करना है, इसीलिए तो मैंने कमांड रन की है. ओके, सो पैकेज इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड. बट मुझे पैकेज स्टार्ट भी करना पड़ेगा अमेज़ॉन में, बट उबंटू में हमें पैकेज स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है. तो यहाँ पे system ctl
स्टार्ट nginx, पैकेज स्टार्ट करने के लिए एक कमांड होती है। तो पैकेज स्टार्ट हुआ है, हमें स्टेटस देखना है। तो सिस्टम ctl स्टेटस nginx। ओके, तो ये था अमेजोन के लिए। और अगर उबंटू के लिए आपको इंस्टॉल करना है उबंटू में, तो apt स्पेस apt -get इंस्टॉल nginx करके आप कर सकते हैं। बट मैंने ओएस अमेजोन चूज़ किया था, इसलिए मैं ये नहीं कर पाऊँगी। अब नेटवर्क कनेक्टिविटी देखनी है मुझे कि हमें मेरा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए पिंग कमांड होती है, पिंग। और हम google.com का करके देखते हैं, google.com। तो यस, पैकेट चल रहे हैं, मतलब हमारा नेटवर्क चल रहा है। तो फॉर नेटवर्क कनेक्शंस वी हैव पिंग कमांड। अगर मुझे यूज़र नेम देखना है तो उसके लिए होती है यूनेम कमांड। तो मेरा यूज़र नेम कौन सा है, लिनक्स। अगर मुझे वन स्टेप बैक आना है तो मैं cd स्पेस डबल डॉट ये कर सकती हूँ। अगर मैंने इफ़ आई वॉन्ट टू चेक वॉट एवर कमांड्स आई हैव यूज, इफ़ आई वॉन्ट टू चेक द हिस्ट्री, देन वी कैन यूज द हिस्ट्री कमांड। So these are the commands that I have used till now. So we can see it by using the history command. इंस्टेंस तो लॉन्च किया है, बट इसका बिल हमें लगता है, तो इसीलिए बिफोर शटिंग डाउन योर लैपटॉप और पीसी हमें इस इंस्टेंस को टर्मिनेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने टर्मिनेट करना भूल गया तो इसका आपको बिल भी लग सकता है। ओके, सो इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान में रख के टर्मिनेट करो। यहाँ पे इंस्टेंस को सेलेक्ट करो, पहले इंस्टेंस के स्टेट में जाओ और यहाँ पे टर्मिनेट और लाइक डिलीट का ऑप्शन आता है, सिंपली उस पर क्लिक करके टर्मिनेट करो। और यहाँ पे जब तक टर्मिनेट की स्टेट नहीं आती तब तक बैक मत जाओ। यहाँ पे रिस्टार्ट कर दे सकते हो, रिफ्रेश करके टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं। थोड़ा टाइम लगता है, बट वी हैव टू वेट अगर बिल नहीं लाना है तो। अगर आप भरना चाहोगे तो नो इशू। अरे कितना टाइम लेगा, हो भी जाए टर्मिनेट अब। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टर्मिनेटेड का स्टेट आ गया है। अब आप सब साइट टैब क्लोज कर सकते हो वन बाय वन एंड शट डाउन कर सकते हो। ओके गाइस, आई विश आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द कमांड्स। जो नहीं कवर किए वो मैंने मेरे जो फाइल है उसमें मैंने, जो मेरे नोट्स है उसमें मैंने वो सब कमांड्स कवर किए हैं। और मुझसे जितना हो पाया है उतना मैंने प्रैक्टिकल में कवर किया है। इफ़ यू गाइस वांट more command to cover, then you guys can comment me, and if you are facing any problem, then also you can tell me in the comment section. Okay, so that was a quick introduction to Linux commands. So these are the commands we will use a lot while working with AWS. So remember, practice them daily so that they become second nature. Okay, so tomorrow in day 10 we are going to see we are going to start a service, VPC, like a नेटवर्क सर्विस, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो कल हम वो सर्विस देखने वाले हैं। एंड इफ़ यू लाइक टुडेज सेशन, हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू हैवंट, एंड comment below your favorite Linux command. Okay, so thank you, have a good day.